السلام علیکم ویورز، ہم نے کافی جگہ پہ تاج محل کا ذکر سنا ہے. صحیح ہے کہ وہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا اپنی بیگم ممتاز کے لیے. ہاں اور بہت مشہور ہے، اور سب سے جو اس کی منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کا ایک عجوبہ بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا دیکھنے کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے، آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے جس پہ ہم ریئیکٹ کریں گے وہ تاج محل کے بارے میں مکمل ڈاکومنٹری ہے. ٹھیک ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے بنا، کیوں بنا، کتنے پیسے لگے، مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں موجود ہے. ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اس نے اپنی محبت کے لیے یہ بنایا ہے. ہم نے بھی یہی سنا ہے، لیکن ویڈیو میں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن تھی. یار ہمارے وہ جو ایئر بڈز ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں، تو اس لیے آج ہم اسی پہ گزارا کر رہے ہیں. یہ ویڈیو سٹارٹ ہو گئی. انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل امپائر کے آرکیٹیکٹس کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جس کو آج پوری دنیا تاج محل کے نام سے پہچانتی ہے. 42 ایکڑ پر پھیلا، دور سے ہی چمکتا ہوا یہ مقبرہ جہاں اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچے سجائے ہوئے ہیں، وہیں اس کے اوپر غم اور اداسی کے کئی بادل ابھی تک منڈلا رہے ہیں. زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین، لگ بھگ 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت بلڈنگ اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہیں آج اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے. اس عالیشان اسٹرکچر کو بنانے میں 20,000 مزدوروں نے دن رات خون پسینہ بہایا، اور وہ بھی 1 یا 2 سالوں تک نہیں بلکہ پورے 22 سال. اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ حیرت انگیز طور پہ $1 بلین یعنی 7,500 کروڑ روپیوں سے بھی زیادہ مہنگا ہے، کیونکہ اس بلڈنگ میں مغل آرکیٹیکٹس نے اپنے ہنر کی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی تھیں جن کی دنیا کے ٹاپ انجینئرز بھی آج تک تعریف کرتے ہیں. اس بلڈنگ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ جب مین گیٹ کے پیچھے سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے. دماغ کو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں تھی جو مغل آرکیٹیکٹس نے استعمال کی. اس کے گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مینار باہر کی طرف تھوڑا جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے پر یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے لگتے، جیسا کہ ان مسجدوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور ریزن بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ خطرناک ارتھ کوئک کی صورت میں اگر یہ مینار گرے تو یہ باہر کی طرف گر کر تاج محل پر ایک آنچ بھی نہ آنے دے. لیکن آخر ماجرا کیا تھا کہ اس کو بنانے والے کسی صورت میں اس پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. تاج محل کے وہ کون سے راز تھے جن کو 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، اور جب اس دور میں کنکریٹ یا اسٹیل ہی نہیں ہوا کرتا تھا تو آخر اس عالیشان مقبرے اور اس پر موجود 40 میٹر اونچے ڈوم کو کیسے بنایا؟ ممتاز محل جو کہ شاہ جہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت بگڑ گئی، اور 17 جون 1631 کو پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا. یہ خبر جو شاہ جہاں پر آگ بن کر گری تھی اس نے تو جیسے ان کی دنیا ہی ختم کر ڈالی. شاہ جہاں کی سب سے پہلی محبت اور ان کی سب سے عزیز بیوی ممتاز محل اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پرچائی نے شاہ جہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا. اگلے 8 دنوں تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا، اور اگلے 2 سالوں تک نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی پرفیوم لگایا. ممتاز محل نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی. وہ چاہتی تھیں کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے. اس ٹاسک کو اور ممتاز محل کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا. ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا. قریب 20,000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراش اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا. لشکروں کے لشکر شاہ جہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے تھے. کیونکہ ممتاز کی قبر یمنا ریور کے برابر میں موجود تھی، اسی وجہ سے اس جگہ پر دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بنانا کافی مشکل ٹاسک تھا. ریور کے کنارے زمین کافی سافٹ ہوتی ہے، اور اگر یہاں کھدائی کا کام کیا گیا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا. اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مغل انجینئرز نے یہاں سب سے پہلے زمین کے اندر کئی کنویں کھدوانا شروع کیے. مزدور یہ کنویں تب تک کھودتے رہتے جب تک خشک زمین نظر نہ آ جاتی تھی.
इन कहीं कुओं और को पे बना पत्थरों लेते। और नहीं बालू से ना। भरा गया और फिर उसके ऊपर पत्थरों उस के वक्त दरिया बड़े-बड़े की और कॉलम्स पानी की खड़े बहुत किए गए। अहमियत होती थी इस यहाँ से, सारे तो काम पंप को वगैरह तो अंजाम लगते देने नहीं के थे। लिए हाँ, ये भी मजदूरों है। के साथ साथ हाथियों ये बात की सही है एक आपकी। बहुत बड़ी फौज को भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की ये हाथी ट्रिक भी काम कर चुकी इस्तेमाल थी हुए हैं और इसमें। अब क्या एक बात है। ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो नरम जमीन पर भी फौलाद क्या बनकर बात खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी एक ऐसे बिल्डिंग डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो। एक ऐसा डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से अच्छा, लिया था। मतलब बाप उनकी के खुद की मकबरे से तख्लीक है। मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के कहीं मकबरे कोई से किसी बिल्डिंग आर्किटेक्ट कोर का ने आइडिया लिया और नहीं अपने बनवाया। अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया था। और जब इन सबको कंबाइन किया गया तो एक ये तो जैसे शानदार गाना और remix करते आलीशान हैं डिजाइन उभर कर सामने आया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंटें मौके पर ही बेक की अच्छा, गई। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें लातादाद पैसे भी बहाए जा रहे थे। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी से खाली होता जा कमाल है रहा भाई। लेकिन भाई शाहजहां कोई को यूनिवर्सिटी किसी बना चीज देना। की परवाह नहीं थी, बस उनको ये काम हर कीमत पर कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज्यादा लोग लगाए गए थे कि इनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया था। 20,000 मजदूरों और यार वैसे कारीगरों की डिमांड पूरी करने के कैसी लिए उनकी शाहजहां ने इज्जत या आसपास वो के ख्वाहिश तमाम होती थी। इलाकों से इस पे हम बात अनाज करते हैं, आगरा अभी मंगवा करते लिया हैं। था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगे मरमर से अच्छा, सजाने की। ठीक हो ये गया। संगे मरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान अच्छा। से मंगाया जाना था क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तब तक किसी को भी ये मार्बल इजाजत खरीदने नहीं की होगी। इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगाया गया। कितनी देर में पहुंचा ताजमहल होगा। का ये खूबसूरत डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के डोम बड़ी आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने में बड़ी उनके बात है, पास बड़ी सिर्फ बात है। पत्थरों का ही सहारा था। इस डोम को बनाने में मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी उसकी आज के इंजीनियर्स भी बहुत अच्छा। तारीफ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पीट्रा डूरा या परचिनकारी से क्या बात। डेकोरेट किया जाना था। पीट्रा डूरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया वाह। जाता है। मार्बल को बड़ी महारत और बारीकी से कीमती पत्थर की शेप के हिसाब से तराशा जाता है और फिर उसमें पत्थर को ग्लू के जरिए वाह। चिपकाया जाता है। वाकई बड़ी ताजमहल मेहनत पर हुई है। इस्तेमाल होने वाली बहुत मेहनत ग्लू है। कोई आम ग्लू नहीं थी। काफी रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद मालूम पड़ा कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगे मरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती Very है। good, वही very सेम good. ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल अच्छा। की जाती है। ताजमहल है, की देखें खास कैसा बातों में खूबसूरत है। एक बहुत बात ये भी शानदार है कि है। ये दिन में 4 मरतबा अपने रंग बदलता अच्छा। है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक कमाल। शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रुख देखने को मिलता है। नीले वाकई आसमान शानदार पर है। जैसे मोती चमक रहा हो और सनसेट के वक्त ये वाह। पूरी बिल्डिंग गोल्डन जबरदस्त, कलर की दिखाई जबरदस्त। देती है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब कमाल हो है। चुका था। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी मुमताज की याद महल। में ही रखा। मुमताज महल से इसका नाम ताज महल रख दिया गया। हर साल शाहजहां मुमताज की बरसी पर यमुना रिवर के जरिए ताजमहल पर जाया करते थे। ये ताजमहल की ऐसी मतलब एंट्रेंस उसमें थी रहते नहीं जिसको थे। सिर्फ शाही खानदान इतना के पैसा लिए लगा बनाया के भी। गया था। इस हाँ, हाँ। एंट्रेंस की दीवारों पर दिलकश सिर्फ नक्काशी का यादगार काम बनाई किया है गया था, जो शायद सिर्फ शाही आंखों के देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। 4 सालों के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के पंजाबी अपने ही सिकंदर बेटे शौक ने दा कोई शाही मोल नहीं। तख्त उलट दिया और खुद मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया।
शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे उसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया। ये तो फिर होना ही था। एक फैसिलिटी कमजोर हो गए ना, मईशत ही कमजोर हो दी गई और वो ये थी कि जिस कमरे में उसको बंद किया गया था उसकी खिड़की से वो ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 इयर्स की एज में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां का अब मुमताज से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और उनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। साहब ये क्या आपने आज स्टोरी सुना दी है, बड़ी अजीबोगरीब सी। अच्छा, यकीन करें कि पहले हमने इसके बारे में काफ़ी सुना हुआ है, मतलब ना ताजमहल के बारे में कि अजूबा है, और हमें जो इसकी स्टोरी थी ना वो आज पता चली है कि ये इसके पीछे मतलब मोटी मोटी बातें तो हमें पता थी कि ऐसे हुआ था, उसने अपनी बेगम के लिए बनाया। उसमें जो तल्ख बातें हैं वो आज पता चली हैं कि उसमें इतने क्राइसिस आ गए थे कि लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा था। लेकिन यार ये वैसे मैं तो इसको बेवकूफ़ी कहूँगा कि यार आपने पूरी मुल्क की मईशत डबो दी है सिर्फ अपनी एक ख्वाहिश के पीछे। हाँ ठीक है, अगर वो छोटा मोटा भी खर्चा करके छोटा से मतलब ताजमहल भी बना देता जी तो फिर भी गुजारा हो ही जाना था, फिर भी लोगों ने ताउम्र उसे याद ही रखना था। वैसे मैंने ना इस वीडियो को देख के मैंने एक अंदाज़ा लगाया है, वो ये कि जो ताजमहल जिसके लिए बना है ना मुमताज़ बेगम, वो काफ़ी खूबसूरत होगी। यार खूबसूरत तो होगी, इनका कोई पता नहीं है, ये 22 साल लगे हैं। अब 22 सालों में इसने 22 शादियां और कर ली हो, इसका भी कोई नहीं ना की भाई, नहीं की। देखे मतलब वीडियो में तो बता रहे हैं कि उन्होंने नई शादी नहीं की, लेकिन देखे अच्छा उसमें निशान इबरत भी बन गए हैं वो, क्योंकि देखें वो जो महल बना है उसके बाद उनकी जाहिर बात है वो चली गई, हुकूमत चली गई, और उसके बाद फिर वो सिर्फ उसको 8 साल देखते ही रहे हैं जेल से, जहाँ पे उनको कैद किया गया था। मतलब ये इबरत है ना कि जिस चीज़ पे इतना इन्वेस्ट किया, जिस चीज़ पे इतना पैसा लगाया, उसको वो अपनी फिर मतलब उस चीज़ को एंजॉय भी नहीं कर सके। और सबसे अहम बात मैंने एक जगह पे डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा था, जब यहाँ पे ताजमहल बन रहा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरी साइड पे बन रही थी, तो वो उधर दूसरी एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहे थे और मुगल शहजादे बस मौज मस्तियाँ कर रहे थे। $1 बिलियन $1 बिलियन बहुत ज़्यादा उस ज़माने में रकम थी। पूरे पाकिस्तान का कर्जा ले जाना भाई इन पैसे नाल। तो उस ज़माने में देखे ना ये बहुत ह्यूज अमाउंट थी जो कि इन्होंने सिर्फ अपने ना एक ख्वाहिश के पीछे ये सिर्फ इजहार मोहब्बत के लिए। इजहार मोहब्बत भी किया, वो बेचारी मर गई है। अब जिंदा होती तो चलो उसके लिए बनाता, अब तो कोई फायदा ही कोई ना, तो वो उसको देख सकती है और ना उसका कोई इस्तेमाल कर सकती है। उनकी बदरू तो नहीं रोज शाम को वहाँ पे आ जाती थी। हाँ मतलब एक चीज़ और है कि वो तो एक अलग चीज़ है ना, उसने गलत किया सही किया वो तो चले उसकी अपनी एक थी, लेकिन जो इसमें कारीगरी दिखाई गई है ना वो कारीगरी वाकई ही दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मेरा जो पर्सनल दिल है, मेरा यकीन करें दिल करता है कि मैं अभी जाके देखूं उसको। क्योंकि एक देखें एक अजूबा है। और इसका एक पॉजिटिव पहलू भी फिलहाल लोगों को बताते चलें कि एटलीस्ट काफ़ी अरसे से इंडिया की गवर्नमेंट इससे काफ़ी टूरिज्म कमा रही है जी, काफ़ी पैसा जनरेट कर रही है। चलें इस हवाले से हम इसको थोड़ा से पॉइंट्स दे देते हैं कि कोई अच्छा काम भी हुआ है। नहीं उसमें मतलब कारीगरी की तो कमाल है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। और वाकई पूरी दुनिया से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। और जो इंडिया में हमारे कोई अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो यार हमें नीचे कमेंट में लाजमी बताना कि आपने अगर विजिट किया तो आपको कैसा लगा। ठीक है, ये थी आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।